International Men's Day to you, first of all, who had acknowledged the significant contributions that men make to the society. But we have always believed in a myth. A man's man is not weak and should not cry. Is it? Men have been taught to not feel, express, display emotion, and certainly not to cry, thanks to all the social taboo that has been built up around it for centuries. But this is untrue. Man has the freedom to freely express his sentiments, emotions, and affection. So, this initiative was taken to discuss the finest male role models and spread awareness of men's well being. So, myself, Pragya Jain, first of all, welcomes you to celebrate the manhood of our Series 2, initiated by She the Power and supported by iViplan. So, today we have Mr. Snehal Vakilna, who is a cyber crime lawyer, cyber crime investigator, and data protection and privacy specialist in Gujarat. Mr. Vakilna is an advocate and a pioneer in the field of cyber security and cyber laws in Surat as well as in South Gujarat. He is working in the field of cyber security and cyber laws since more than 16 years. He is giving his services as an advocate in revenue, stamp duty, taxation matters, along with his involvement in cyber crimes matters and digital evidence issues in India. So that's great. You are doing a great work, sir. Thank you. So before carrying forward to the interview series, we have Ms. Shruti Sheth on board. Ms. Shruti Sheth is the co-founder of iViplan Digital Marketing Services and Charismatic Academy based in Surat. She has more than 15 years of experience and holds Master of Business Administration in Finance specialization. In 2017, she started a community called She the Power. The community runs regular online talk shows and webinars inviting female working professionals from different parts of the country. She has also started running a digital girl campaign for college and university girls across Gujarat to empower and sensitize females for internet privacy and social media security. The other noteworthy campaigns which was done by her are Influence Her, Techie Moms, Unsung Heroes, and Being a Man. She has also received an award of Leader in Marketing from International Women Leaders Forum in Mumbai 2021. In fact, she was also declared as 40 under 40 most disruptive minds in the field of marketing by Agency Reporters 2021. So yeah, let's start with our interview series of celebrating manhood. So I hand over to Ms. Shruti Sheth. Thank you so much, Pragya, for a wonderful introduction. It's my pleasure. Thank you so much. So we are living in this internet era. हम अपना एक पल भी ये नहीं सोच सकते आज के ज़माने में कि हम इंटरनेट के बिना रह सकते हो, वेदर इट इज़ अ फैशन या बच्चों की पढ़ाई या अपना कोई भी प्रोफेशनल करियर, वी कैन नॉट थिंक आवरसेल्फ विदाउट इंटरनेट. बट कई बार ऐसे होता है जाने अनजाने में हम साइबर लॉ में या इंटरनेट के ऐसे प्रॉब्लम्स में ट्रैप हो जाता है जहाँ पे हम एडवाइस के बिना, किसी एक्सपर्ट के एडवाइस के बिना हम वहाँ से नहीं निकल सकते. सो वी हैव मिस्टर स्नेहल वकीलना, जो कि एक वी आर लकी टू हैव यू सर, सीरियसली वी आर लकी टू हैव यू, जो कि इतनी अच्छी, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, जो अपने जो इनका साइबर लॉ का फील्ड है, ही इज, आई थिंक ही इज द मास्टर, आई थिंक क्या ही इज रियली द मास्टर इन हिज फील्ड. Thank you. So we really welcomes you, sir. Thank you for being a part of your show. Thank you so much for inviting me. Thank you. It's our pleasure, and thank you so much for having us. Thank you. So people normally confused. लोगों को ये नहीं पता है कि साइबर लॉ क्या है and what is cyber security. So can you differentiate between that? देखिए, साइबर सिक्योरिटी अगर हम बात करें तो वी आर वेरी अवेयर विद दिस वर्ड. अगर हम थोड़े डिटेल में समझे, इट इज लाइक सिक्योरिटी टू योर सिस्टम. जैसे कि अगर हम बात करें कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर सिस्टम है, कोई भी आप आपके गैजेट की बात करिए, इन एनीथिंग, आपके एप्लीकेशन, आपके डेटा, आपके सॉफ्टवेयर,
So it is a system by which you will protect all your computer gadgets, your data from any theft or you can say damage. तो आप जब आपके डेटा को या आपके गैजेट्स को किसी थेफ्ट या किसी डैमेज से प्रोटेक्ट करते हो और उसका जो टोटल सिस्टम है, इट इज नोन टू बी अ साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और साइबर नेटवर्क सिक्योरिटी और एनीथिंग, आप जो भी नाम इसको आप कह सकते हो. एंड वी ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस वर्ड विच इज साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर सिक्योरिटी. जबकि अगर हम बात करें साइबर लॉ की, तो ये डेफिनेशन थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, बिकॉज साइबर लॉ के लिए हमें समझना पड़ेगा साइबर स्पेस को. एंड अगर हम बात करें साइबर स्पेस की, तो इट विल इंक्लूड एवरीथिंग. इट नॉट ओनली इंटरनेट, इट विल इंक्लूड इंट्रानेट, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, द डेटा विच इज नॉट कनेक्टेड विद इंटरनेट. दैट इज कोई भी डेटा जो डिजिटल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा है इन एनी फॉर्म, इट इज अ पार्ट ऑफ साइबर वर्ल्ड या वी कैन से दैट साइबर स्पेस. और ये जो पूरा साइबर स्पेस है उसे गवर्न करता जो लॉ है, इट इज नोन टू बी साइबर लॉ. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द बेस ऑफ साइबर लॉ. अगर हम इंडिया की बात करें तो देयर इज अ एक्ट व्हिच इज नोन टू बी इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. एज इट वाज अमेंडेड, the word as amended 2008 is added to it. And after the implementation of Indian Information Technology Act, there has been various changes in Indian Penal Code, Indian Evidence Act, Bankers Book Evidence Act, as well as Reserve Bank of India's Act, so that this all other related acts are made compatible with gadgets or electronic communications. तो ये जो पूरा framework है, it is known to be collectively, this framework is known to be cyber law. और उसका जो बेस है, then we can include it as Indian Information Technology Act to be the base of cyber law in India. सर, इट्स वेरी गुड इंफॉर्मेशन. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये दोनों वर्ड्स को शायद साइबर लॉ की जगह साइबर सिक्योरिटी यूज कर दिया. सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग फ्रॉम योर साइड कि आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करी है, बिकॉज many people are confused in this. Right. So how the police department across the country are getting ready to control cyber frauds? Are you satisfied with the things shaping up for them? Yes. See, the thing is that comparatively अगर हम बात करें, see there are so many different law enforcement agencies. We can always designate police department as to be one of the most important part of law enforcement agencies in India. अगर हम पहले की comparison में बात करें, then I can very well say that Indian police department are trying their level best to cope up with all the cyber crime things. Today we have different cyber cell. ज़्यादातर अगर आप कोई भी सिटी में जाओ, you would be having cyber cell in it. और जहाँ साइबर सेल नहीं हो, तो वहाँ की जो भी क्राइम ब्रांच है, that would be handling the cases in relation to the cyber crime issues. अगर हम बात करें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, तो the thing is that, और आप अगर बात करें मेरे सेटिस्फेक्शन की, तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम इंडिया की बात करें, तो जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, there should be a well frame of coordination between all the different law enforcement agencies. See, we are trying our best, but there is always a scope of updation, या there is always a scope कि हम इससे और better perform कर सकें. And it is very important for us कि आज अगर हम बात करें साइबर क्राइम की, तो it is very easy कि आप किसी भी स्टेट में रहकर या even internationally you can manipulate people with the help of this gadget. तो it is very easy and very convenient for the cyber criminal. और जब हम बात करें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, तो there are so many questions with relation to jurisdiction. तो ये जो सारी चीजें हैं वो हैम्पर कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक वेल एसोसिएटेड और कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनने के लिए. हम कह सकते हैं कि दिस आर सम ऑफ द हर्डल्स फॉर इट. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड टेक अ अप्रोप्रिएट इनिशिएटिव फॉर कोऑर्डिनेशन फॉर नॉट ओनली डिफरेंट पुलिस डिपार्टमेंट्स बट ऑल different types of law enforcement agencies, so that we can cope up with all the cybercrime issues more efficiently. So I hope
नियर फ्यूचर में पहले से अगर एट प्रेजेंट अगर हम सिनेरियो की बात करें तो काफी इम्प्रूवमेंट बिल्कुल देखा जा रहा है. एंड आई एक्सपेक्ट इन फ्यूचर सी आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ अपडेटिंग दिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. सो अवेयरनेस के साथ साथ जितने भी अलग अलग फील्ड है उसमें वी एज अ सिटीजन आल्सो कुड पार्टिसिपेट एंड ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू मेक दिस सिस्टम मोर इफेक्टिव. सर करेक्टली सेड, जैसे आपने कहा कि वी एज ए सिटीजन वी शुड टेक द इनिशिएटिव, राइट. पुलिस दे आर डूइंग देयर वर्क, मतलब पुलिस के पास जब हम जाएंगे तब पुलिस हमें हेल्प करेंगी. बट इन मैनी केस वी हैव सीन कि लोग जाने से डरते हैं. अगर किसी का बैंक में फ्रॉड हो गया, जैसे ओटीपी दे दिया, यू नो पीपल खुद ही अपने गिल्ट फील करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या पुलिस शायद पता नहीं हेल्प करेगी नहीं करेगी. तो अगर एज ए सिटीजन वी हैव टू बी अवेयर कि अगर एटलीस्ट हम किसी को बोले तो सही, एटलीस्ट वी शुड अप्रोच द यू नो पुलिस और एनी प्रोफेशनल हु इज टेकिंग केयर. So right. it will be helpful then only कि अगर पुलिस helpful है, experts है. नहीं, very well said, आपने बहुत right कहा. Actually देखिए, basic level of awareness is the base of anything. और अगर आप gadget use कर रहे हो, it is very important for you to be aware कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए. And thereafter अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है which could be designated as cybercrime, then it is very important for you to report it. So that is very important. Yes. Right. So, sir, people above 55 age group are those who are not much aware of the fraudulent activity on social media, yet they are actively using Facebook and WhatsApp. Sir, normally ये चीज देखी हुई है कि ये जो साइबर लॉ या जो साइबर क्राइम, स्पेशली साइबर क्राइम, उनके शिकार 50 प्लस या उससे बड़े एज में ये चीज आजकल ज्यादा देखी जा रही है. आई एम नॉट टेलिंग कि सिर्फ उसी में देखी जा रही है, बट कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं, बिकॉज यूथ आर अवेयर ऑफ दिस, बट ये एज में ये चीज ज्यादा समझ में आ रही है. तो सर व्हाट डू यू एडवाइज? सी आपने जो कहा, आई डू एक्सेप्ट इट. See, the thing is that social media networking sites, social media application, see, they are a platform के जिसके थ्रू आप digitally एक दूसरे के साथ interact कर सकते हो. Now, this all application networking things are so enchanting कि आप हर एक ग्रुप की बात कर दीजिए, they would be surely enchanted by various social media platforms और application. और रोज ना रोज कोई ना कोई नया एप्लीकेशन आपको बिल्कुल से मार्केट में मिल जाएगा. नाउ द थिंग इज दैट पीपल, जब भी आप कभी किसी चीज के बारे में एन्चांट होते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू बी अवेयर अबाउट इट. और अगर हम बात करें एक एज से बड़े ग्रुप की, तो नो डाउट दैट दे आर सो enchanted towards all this applications and networking sites, but they should be made aware about के उनके अच्छे और बुरे पार्ट दोनों से they should be literally made very much aware. और in any case मैं बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसकी हम बिल्कुल से हम कुछ चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं. अगर हम इनिशियल बात करें तो एक रूल हमें बना देना चाहिए कि we should never click on unknown links because they are very dangerous. Apart from this, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर देन यूज गूगल प्ले स्टोर फॉर इट, एंड इफ यू आर iOS दैट इज एप्पल यूजर देन यू शुड यूज appropriately Apple App Store to download any app or application. Right. Not only this, but we have 3 powers in our hand. This should be very clear कि हमारे पास एक तो पावर है सिक्योरिटी का, एक पावर है प्रिवेसी का, एंड 1 पावर इज फॉर रिपोर्टिंग. अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो, नाउ वी हैव अ फैसिलिटी ऑफ मिनिमम 2 स्टेप वेरिफिकेशन. हमारा जो पहला स्टेप है वेरिफिकेशन का, दैट इज अवर यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड द सेकंड स्टेप इज कि आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी को आप री-वेरीफाई करोगे, then and then only even the person who is having your password could enter to your particular account. तो ये चीज बहुत important है, which we could be
यूजिंग इट वेरी प्रूडेंटली. नॉट ओनली दिस, एक प्रिवेसी का जो पावर है वो भी हमारे पास है. कोई भी आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन की बात कर लो, यू कैन ऑलवेज चेक एंड वेरीफाई कि आपका जो भी अकाउंट है वो कौन से डिवाइस से लॉग इन किया गया है. इवन फेसबुक में ये फैसिलिटी है. एंड अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की या जो भी सोशल मीडिया ऐप है, वहां जाके आप इजीली जान सकते हो. इवन इन केस ऑफ व्हाट्सएप, अगर आपका एक से ज्यादा जो गैजेट है वो अगर आपके अकाउंट के साथ लिंक है, तो यू कुड इजीली वेरीफाई कि कौन से अकाउंट के द्वारा आपका जो पर्टिकुलर नंबर है, जो व्हाट्सएप है, वो एक्सेस किया जा रहा है. नॉट ओनली दिस, वन मोर पावर विद अस इज रिपोर्टिंग. We can always report any of the issues to the concerned developers of that particular application. और कुछ नहीं, then if there is any of issue कि कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, then you can always report to the nearest cybercrime cell. तो ये कुछ चीजें हैं वो not only जो 55 से up है, but for any person who are very not much used to this gadget thing, तो बिल्कुल से वो ध्यान में रख सकते. आपने जो ये चीज बताई वो हमारी गर्ल्स के लिए, जो कॉलेज गर्ल्स हैं, जो कि फीमेल्स है, आज भी हमारे इंडिया में ये डर रहता है सर, स्पेशली फीमेल्स के लिए, जो जिनके घर वाले शायद कभी उनको अलाउ नहीं करते. कॉलेज गर्ल्स है तो उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ नहीं करते. काइंड ऑफ कि डीपी पे अपनी फोटो मत रखो, शायद उसका मिसयूज हो सकता है. पर आपने जो ये सारी चीजें बताई, आपने जो ये सारे पॉइंट्स बताए, तो अगर वो सारे फॉलो किए जाए तो हार्डली कोई प्रॉब्लम हो सकती है. जी, आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बिल्कुल से बच जाओगे अगर ये सारी चीजें आपने बिल्कुल से फॉलो अप की, आप अलर्ट रहे, आप कॉन्शियस रहे. देन आई एम वेरी श्योर कि जो भी काम अगर आप कॉन्शियसली करोगे तो बहुत सारी जो न्यूसेंस वैल्यू है वो बिल्कुल से निकल जाएगी. So instead of avoiding putting the pictures on the social media and putting your information on the social media, better कि हम ये सारे steps follow करें. Security and privacy. और चीज है मैम, which is known to be your profile locking. आप Facebook में हो या जो भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे हो आप, it is very important कि आप आपके प्रोफाइल को लॉक रखिए and keep be very sure कि जो भी व्यक्ति अननोन है, अगर आप उनके ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हो, then please do not add him to your friend list. तो ये चीज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो we could very well take care of this thing. जी. Right, sir. Because sometimes youngsters, they used to increase their followers. They mostly used to do all these things कि चलो जितने ऐड हुए तो हमारा प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग लगेगा. बिल्कुल. Right. So what immediate steps one should take if he gets trapped in cybercrime related to bank transaction? As I said, sir, कई बार phone calls आ भी जाते हैं, लोग OTP शेयर भी कर सकते हैं. तो सर, what is the immediate step? आपके पास तो और ज्यादा केसेस ये सब तो आते ही होंगे. जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप जब भी this mobile thing या technology is it has two-way effect. They are very useful as well as they could be very harmful. तो सबसे पहले जब आप गाड़ी चला रहे हो, that you should have control of the car. उसी तरह टेक्नोलॉजी में भी at least you should be aware and updated before using that particular technology. तो कुछ चीजें हैं जो बेसिक है. अगर आप बात कर रहे हो OTP की या कोई अननोन लिंक पे क्लिक करने की, तो ये जो चीजें हैं we should be very much aware कि ये जो गलतियां हैं वो हम खुद नहीं करें. इसके अलावा अगर हम बैंकिंग थेफ्ट की बात करें, because it is like more than 21 या 22 years of our Indian Information Technology Act being implemented, और अभी भी हम basic awareness की बात करते हैं. It is not good on our part. We should understand that we should not ever share our password और OTP. आप अगर आपके घर की कीज किसी और को दे दोगे and then अगर आपके वहाँ चोरी हो रही है, you could not blame that particular thing. वो आप ही की गलती है. So ये बेसिक चीजों के बारे में तो आपको अलर्ट होना ही चाहिए. Apart from this, there are certain notification जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए हैं, which are known to be unauthorized electronic banking transaction. उनके रिलेटेड के जो नोटिफिकेशन है जो 2017 में इम्प्लीमेंट किए गए हैं,
उसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है जिसमें आपकी गलती नहीं हो, इट इज लाइक नॉट योर फॉल्ट, आपने ओटीपी नहीं शेयर किया, इट इज योर फॉल्ट इफ यू शेयर योर ओटीपी। बट इसके अलावा ऐसी कोई गलती हुई हो या कोई इश्यू हुए हैं, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 दिन के अंदर यू आर सपोज टू इंटीमेट दैट एंड रिपोर्ट दैट थिंग टू योर बैंक। जो बैंक है उन्हीं को आपको रिपोर्ट करना है विद इन 3 days unauthorized transaction. Not only this, कभी-कभी 3 दिन से ज्यादा अगर हो जाए, like 4 to 7 days हो जाए, तो according to this notification, minimum 25,000 का जो लॉस है वो कस्टमर को बेयर करना पड़ेगा। और अगर आपको रिपोर्ट करने में 7 दिन से ज्यादा हो जाए, then the total transaction or the total unauthorized transaction, to make very clear, will be dependent on the norms of that particular bank. जो बैंक का अप्रूव्ड बोर्ड है उनके जो नॉर्म्स है विद रिलेशन टू अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, उनके ऊपर हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। सी नाउ इन ऑल दिस केस इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब भी ऐसी चीजें हो कि गलती हमारी खुद की हो, जैसे कि आपने ओटीपी की बात कही, देन द लायबिलिटी वुड श्योरली नॉट बी टेकन बाय बैंक, वो हमारी लायबिलिटी हो जाए। और अगर गलती बैंक की हो, देयर इज एन एक्टिव फॉल्ट, एक्टिव नेग्लिजेंस or active participation of any part of bank, then total liability would be taken by bank, अगर आप 3 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं करोगे तो भी। So this all are basic things कि जो हम कह सकते हैं कि there is a notification which is known to be the notification in relation to unauthorized electronic banking transaction जिसमें दिए गए हैं। Apart from this, अगर एक बार आपसे OTP भी शेयर कर दिया गया हो, then also we have one base which is known to be our central cyber crime complaint number, which is 1930. ये जो कंप्लेंट नंबर है उसमें आप कभी भी कॉल कर सकते हो और जो भी डिटेल्स हुई है आपसे, जो गलती आपसे हो गई है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो आप बिल्कुल से आप शेयर कर सकते हो। एंड नाउ अवर इंडियन हम कह सकते हैं साइबर सेल इज वेरी एक्टिव एंड आई एम वेरी श्योर कि विद इन कपल ऑफ आवर्स वो लोग पर्टिकुलरली जो भी अकाउंट है उन्हें फ्रीज कर देंगे। एंड वी शुड बी वेरी होपफुल कि देयर आर प्रोबेबल चांसेस कि हमें हमारा ये जो अनलॉफुल लॉस है वो हमें वापस मिल जाए। बट इन एनी केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम खुद अवेयर हो, सो दैट वी कुड रिमेन सेफ फ्रॉम ऑल दिस न्यूसेंस। जी, एज यू सेड सर कि बहुत सारी चीजें जो आपने बताई जो हमें सेफगार्ड करती है, तो हमें इतना भी नहीं डरना चाहिए कि हम बैंक के ट्रांजैक्शन ही ना करें या यू नो कि एप्लीकेशन ही यूज ना करें, बिकॉज इन दिस एरा एज आई सेड कि वन कैन नॉट इमेजिन एवरी टाइम हम बैंक में जाए या हमारा यू नो ट्रांजैक्शन करे। इट इज नॉट लाइक, इट इज टाइम कंज्यूमिंग और हर कोई आजकल तो जीपे भी हाथ में है। So if we are using it, you know, properly, अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये चीज से बच सकते हैं। बिल्कुल, of course, it is for our convenience. Just we should use it more consciously and conveniently. That's the point. Yes. Sir, especially after COVID, बच्चों का मोबाइल यूज बहुत बढ़ गया है। So हो सकता है कभी you know पेरेंट्स का फोन उनके पास हो या कोई भी उनका खुद का नंबर हो, तो how will we safeguard our children like from you know all kind of activities? So what message you want to give? See, this is very interesting question, as well as I could understand कि being a parent we should be very conscious because child उन्हें हम कुछ कह नहीं सकते, but the thing is that कि make very sure कि आपका जो फोन है, आपका जो सिम कार्ड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके सारे बैंक अकाउंट से लेके आपके सोशल मीडिया एप्लीकेशन या कितनी भी चीजें हैं वो इन द वे ऑफ 2-step वेरिफिकेशन या कहीं ना कहीं आपके सिम कार्ड एज वेल एज आपके गैजेट से कनेक्टेड है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट जो भी आपके चाइल्ड हो उनका एक अलग गैजेट हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो गैजेट है आप एटलीस्ट उससे अपने चाइल्ड को दूर रखें और मेक श्योर कि उनकी जो भी गैजेट है उसके अंदर पेरेंशियल लॉक हो एंड उनका जो लैपटॉप हो या उनका जो भी गैजेट हो
इट शुड बी समवेयर नियर ड्राइंग रूम. दैट इज आप उनकी जो भी एक्टिविटीज है उनके ऊपर आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम मॉनिटर कर सकते हो, बिकॉज प्रेजेंटली दे आर नॉट वेरी मच अवेयर एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम उन्हें उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है उससे ज्यादा अवेयर कर सकें. अगर हम रियल फैक्ट की बात करें तो द एज लिमिट फॉर यूजिंग दिस डिफरेंट सोशल मीडिया एप्लीकेशन एंड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स इज 13 प्लस. बट 7 years 8 years के जो भी किड्स है या शायद उससे भी छोटे वो गैजेट यूज कर रहे हैं. सो मे बी शायद फाइनेंशियली कुछ पेरेंट्स उतने मतलब शायद सक्षम नहीं हो सकते कि वो अलग से गैजेट अफोर्ड कर पाए. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको एक बात और भी कहूंगा कि अगर आपको फिर भी उन्हें गैजेट देना है देन डू वन थिंग कि कुछ ऐसे एप्स है व्हिच डू नॉट डायरेक्टली नीड इंटरनेट फॉर देयर कनेक्टिविटी. तो ऐसे ऐप आप अपने खुद के गैजेट पे इंस्टॉल करके उन्हें दे सकते हो. जस्ट मेक श्योर दैट दे आर नॉट इन टच विद डायरेक्ट इंटरनेट अगर वो आपका गैजेट यूज कर रहे हैं. मैं एक छोटी सी बात आपको कहूंगा. देयर वाज अ केस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कोई एक व्यक्ति को गिफ्ट देना है. देयर वाज अ टॉय व्हिच वाज अ चाइनीज टॉय. अब वो जो चाइनीज टॉय है उसका जो मैनुअल है वो स्टडी करने के लिए दैट पर्सन हैज टू यूज अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन. आजकल हमारे जो भी टॉयज आ रहे हैं दे ऑल आर समवॉट टेक्निकली and we have to scan the things. यस. तो यू आर सपोज्ड टू स्कैन दैट थिंग और फिर वो लिंक के द्वारा वो ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. then and then only that toy would be performing to its best level. Now see you are not aware वो लिंक आपको मिल जाएगी. अब वो लिंक they are one type of थर्ड पार्टी लिंक्स. तो जब भी वो लिंक को आप क्लिक कर रहे हो तो इट इज नॉट श्योर कि आप गूगल प्ले स्टोर से ही कनेक्ट होंगे. वो जो ऐप आपके अंदर इंस्टॉल होगा दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन. और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ द किड इज यूजिंग द गैजेट ऑफ देयर पेरेंट तो उनकी सारी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो वाया दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. तो ये सारी चीजों के लिए इट इज वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी एसेंशियल फॉर अस कि किड्स का अगर कोई हम कहें कि अलग से गैजेट हो then that would be very useful and fruitful for them. And at least we should always monitor the activities of kid until he is 18. सर आपने जो ये बात कही इट्स रियली आई ओपनिंग थिंग. मोस्टली ये होता है कि बच्चों की जो भी हमारे टॉयज होते हैं, बच्चों के आजकल के जितने टॉयज होते हैं या स्मार्ट वॉचेस हो गए जो बच्चे ही यूज करते हैं, बट देयर हैज टू बी स्कैन्ड फर्स्ट. सो इट इज रियली डेंजरस कि बच्चे अगर यूज नहीं, इफ दे आर नॉट यूजिंग द आवर डेटा, इट माइट बी पॉसिबल कि उनके फ्रेंड्स हैं या गैजेट्स बच्चों के एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं. तो इट इज रियली वेरी डेंजरस. And see, many of the app are already manipulated. और वो जो application के developers हैं, they are third-party app developers. If that application is not installed from your Google Play Store or a particular place, so they are created manipulatively so that they could get access over your gadget. So they should be very well and very consciously used. जी. Right, sir. So, sir, it is really wonderful talking to you. ये सब बात तो साइबर लॉ की हो गई, साइबर क्राइम्स की हो गई, साइबर सिक्योरिटी की हो गई. But one message from your side to women on this Men's Day. See, for women, like मैं अपनी बात करूँ तो I am totally surrounded by women. I have my 2 girls, my mother, my wife, my sisters. Women are very important part of society, and I don't know कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि they are equal to men. I am very sure कि वो men से बहुत आगे हैं, and with their support हम कहीं ना कहीं society में कुछ हमारा जो active efforts है वो दे पा रहे हैं. So women are not equivalent; they are much ahead of men, and I could very proudly say this to each and every woman I know. So I would just like to give my best wishes to all of the women, and I am always here for any kind of their demand or any kind of their order. I am always there, available at all of their services. Thank you. Sir, thank you so much for this beautiful message. Wish you a very happy Men's Day, sir. And thank you. Thank you so much once again. Thank you.